तो कल मेरा नीट है और अभी रात के 9 बज रहे हैं एंड आई जस्ट रिमेंबर्ड आई हैवेंट प्रिंटेड माई एडमिट कार्ड येट सो ऑल्सो पिक्चर भी अभी तक अपस्केल नहीं किया सो यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड माई सीरियसनेस. देखो भाई, मैंने 3-4 महीनों से बुक्स को टच भी नहीं किया और ये जी वगैरह में जो भी मार्क्स आ रहे थे वो मेरा पहले जो भी मैंने पढ़ा था उसके कारण से. बट सच बोलूँ तो इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम ब्रो सिंस आई एक्चुअली टच द बुक. और फ्रेंकली इफ़ आई हैड टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, मुझे सिर्फ चैप्टर्स के नाम याद है. वेल हूँ मैं किडिंग, मुझे चैप्टर्स के नाम तक भी याद नहीं है. ऑल्सो कैन यू सी दिस थिंग, ये वाला I don't know from where, but I've just got a blood clot in my forehead. But regardless, man, I am extremely pumped for tomorrow's exam because, bhai, let me show you. Then I'm gonna fucking get loose of everything you can see right there on the table. Bro, I hated them. I solemnly hated them with all my heart. And tomorrow is the day I'm gonna get rid of everything you see there. Yes. So before the exam, I'm going to do the most important thing, and that is not last minute revision, but that is go and get a sleep because that is the only thing that I can do right now. I don't know भाई, आज थोड़ा टेंशन सी फील हो रही है. मतलब I haven't touched the book for the last 3 months. I don't even remember the names of the chapters, but still low-key बहुत दुख हो रहा है. I don't know, maybe it's because all the years that I have spent practicing to get better at this thing and finally deciding to call it off, or maybe it's the excitement of actually having to get rid of everything that I always hated for the past 2 years. I don't know, man. बहुत I cannot express this feeling that I'm having right now. I am low-key afraid. बहुत ही nervousness आ रखा है, बहुत ही nervous हो रखा है. I don't know why, because see man, I sat for JE, I sat for WBJE and I never had this feeling of my heart skipping beats after beats. But आज तो भाई एकदम से क्या ही हो रहा है, मतलब my words can't explain. पर भाई अभी भी एग्ज़ाम हम इंट्यूशंस के दम पे ही देंगे क्योंकि दैट्स द ओनली ऑप्शन आई एम लेफ्ट विद. एंड ऑल्सो दिस इज़ माई लास्ट एग्जाम दैट आई विल बी अपियरिंग फॉर एक साइंस स्टूडेंट बन के. और इसके बाद आई एम फ्री, not free basically, but I don't have to have this tag of being a science student anymore, and that is low-key satisfying because I never enjoyed it, to be very honest. And सच बोलूँ तो चलो आज बोल ही देते हैं, I was never into medical from the first place. यार देखो, बात 10th की है एंड द गर्ल दैट आई वाज डेटिंग एट दैट टाइम, जहाँ जिसके साथ अभी कुछ ही महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, शी वॉज वेरी मच एंथुजियास्ट अबाउट टेकिंग मेडिकल एंड आई यूज्ड टू फील हम तो स्मार्ट आदमी हैं ही, हम कुछ भी चीज़ कर सकते हैं तो वाई नॉट ट्राई मेडिकल टू स्पेंड मोर टाइम टुगेदर विथ हर. Dump me just was about to fuck up his whole career for a girl. Never do that. I am still regretting it to this day. And today is the day I let go of it. The last remains of attachment that I so wanna get rid of. Today is the day. Today is the day we begin. Today is the day we start to grind. Today is the day we start to hustle. Today is the day we get rid of what we hated. And today is the day we shoot for the stars. And so here's the thing. I used to have good scores in all my exams. So my leaving a few of course. So my parents used to think कि भाई लड़का होशियार है, लड़के को मेडिकल में करने का है तो लड़का मेडिकल उठा लाएगा. They think it's that easy. So अब उनको कौन ही समझाएगा. तो let's just see what happens. आज मैं intuitions के दम पे जा रहा हूँ and I so badly want to not score much, but देखते हैं अब क्या ही होता है. Not gonna give my 100% for sure. And अगर दूँ भी तो भी भाई क्या फ़ायदा, 3 महीने से बुक्स को हाथ भी नहीं लग रहा है तो मतलब 100% से भी कुछ नहीं उखड़ेगा. Okay, so I gave my exam and my exam went something like ठीक ठाक सा. मतलब for a guy who has not touched the book ever since the exam was cancelled, the exam was pretty nice, but it is not nice enough to get a government college in Kolkata, the place where I'm residing. So yeah, it is what it is. तो भाई I went to sit for the exam and my exam center was in an engineering college. तो देखो scenes कुछ ऐसे हुए. I was the first person to enter the
एग्जाम हॉल। एंड जब मैं एंटर किया तब मैंने मेरा रोल नंबर्स वगैरह चेक करके आई गॉट टू फाइंड आउट कि बेंचो द फर्स्ट फ्रीकिंग सीट इन द एग्जाम हॉल इज माइन। मतलब आधा फ्यूज तो उधर ही उड़ गया था। इट्स नॉट दैट कि पीछे बैठ के मैं चीट कर पाता और कुछ वैसा। इट्स नॉट योर रेगुलर सीबीएसई का एग्जाम, इट्स अ फ्रीकिंग एनटीए वाला एग्जाम जो बहुतों का लाइफ डिसाइड करने वाला है। बट द फैक्ट दैट मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठना पड़ेगा फॉर अ मदर फ्रीकिंग 3 लॉन्ग आवर्स, वो थोड़ा मतलब टाइट हो रहा था। तो देन आई वाज होपिंग कि भाई चलो छोड़ो, फर्स्ट बेंच मिल गया तो ठीक है। इन्विजिलेटर थोड़ा क्यूट सा होना है, एक अच्छी सी क्यूट सी लड़की को देखते देखते 3 घंटे हम गुजार लेंगे जैसे तैसे कैसे। इंजीनियरिंग कॉलेज पे लड़की, आई वाज सच अ फ्रीकिंग फूल। एंड तो अब आए भी तो 2 मिड एज्ड टीचर एंड भाई साइन करवा करवा के तो मेरा 3 घंटे में 1.5 घंटे वही चले गए। अब तक इस साल में जितने ना साइंस किए हैं, लेट मी माइंड यू, आई सेट फॉर WJE एंड जेई मेन, उन सबसे ज्यादा नीट में मुझे साइंस करना पड़ा। चलो अब थोड़ा बातचीत करते हैं, बिकॉज आई हैव नोटिस दिस वन थिंग, क्योंकि मैं जब ज्ञान पेलता हूँ, you happen to like it for some reason, and like any other regular ordinary Bengali, I also like to give gyan. So let's get to the Sarvajanin part. So as you know, there is many types of people who gave the exam. तो पहले हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो एकदम गो गेटर वाले बंदे हैं, hunt that shit down वाले बंदे हैं। मतलब सीधी भाषा में बोलूं तो the ones who are going to crack this exam, and not just crack this exam but get themselves into some cool ass government medical college, जैसे तैसे कैसे, in whatever state, in whatever city that is. So उन लोगों के लिए भाई थोड़ा सा तालियां, क्योंकि they have actually worked their ass off and they have actually achieved what million other people actually dreamed of. So kudos to you भाई. And now we're gonna talk about the ones who didn't make through it. तो भाई देखो, तो पहले I would like to talk to those people who are actually putting too much importance to this exam. क्योंकि देखो, I have followed this news multiple times over and over and over for a couple of years now. क्योंकि नीट होने के बाद many students decide to hang themselves. मतलब सीधी भाषा में बोलूं तो सुइसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दे couldn't clear a fucking exam। भाई ये बात बहुत ही चूतिया सा साउंड करेगा, क्योंकि तुम पहले ये बात सुन लो, इफ यू इवन वांट टू हैंग योरसेल्फ ना, दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि यू डोंट हैव अ लाइफ इंश्योरेंस येट। मींस मुझे तो नहीं लगता इस एज में किसी के पास एक लाइफ इंश्योरेंस होगा, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है, एंड आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि तुम्हारे पास भी नहीं है। तो अगर तुम हैंग कर लो भी ना अपने आप को, यू कैनॉट मेक अ ग्रेट डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि ना किसी को तुम्हारे लाइफ इंश्योरेंस का पैसे मिलेगा, ना किसी को खुशी भी मिलेगा, ना किसी को मतलब कुछ पॉजिटिव सा भी फील होगा। बस इस दुख दर्द की दुनिया में तुम थोड़ा और गम देके जाओगे। सो आई डोंट थिंक दैट्स अ स्मार्ट डिसीजन दैट यू कैन मेक विद योर लाइफ। ऑल्सो ये भी चीज है कि तुम अगर गिव अप कर दो ऐसे ही, तो मतलब जो एक कंबाइंड एफर्ट है ना, सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारा तो सिर्फ शायद 2 साल का मेहनत ही या फिर 3 साल 4 साल का मेहनत है, बट तुम्हारे साथ साथ पैरेलली जो मेहनत तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे घर वाले, रिश्तेदार सब लोग कर रहे हैं, एक्टिवली और इनएक्टिवली, दोस्त भी इंक्लूडेड, तुम पर जो आशाएं लगा के बैठे हैं, एवरीथिंग विल गो इन वेन इफ यू हैपन टू जस्ट गिव अप ऑन योर लाइफ, दैट आई एम सेइंग। सो ये मत करो। तो देखो, इफ यू आर डेड पैशनेट अबाउट इट, देन गिव इट वन मोर शॉट ना। इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन, सो जस्ट गो गेट इट, सो जस्ट ट्राई फॉर वन मोर टाइम इंस्टेड ऑफ गिविंग अप ऑन योर लाइफ। अगर ये चीज इतना ही मैटर करता है तो इसको एक्चुअली तुम वैल्यू करो, इसको एक्चुअली तुम हंट करो, चूतियों जैसी बस लटक मत जाओ, क्योंकि दैट एंड अ सॉल्यूशन, दैट्स अ फकिंग एक्सप्लेनेशन मार्क टू द मिड ऑफ द सेंटेंस व्हिच डजंट इवन मेक एनी सेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वंस जिन लोगों को पता है कि मेडिकल इज नॉट देयर कप ऑफ टी, बट स्टिल तुम उसमें घुसे जा रहे हो। आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस, बट मैन सी, एक चीज को समझो, 16 लाख पीपल साइंड अप फॉर नीट इन 2021। 16 lakh people signed up for NEET in 2021 alone. मतलब थोड़ा इस चीज को समझो। If you have to say it in fundamental terms, then we can say it कि 16 lakh students, 16 lakh youths are actually dreaming of pursuing medicine in 2021 alone in India. मतलब चीज का ग्रेविटी को समझ रहे हो? 16 लाख बच्चे एक ही सपने देखते हैं कि उन्हें नीट क्लियर करना है, उन्हें मेडिसिन पढ़ना है। Can you fucking believe it? मतलब 16 freaking lakh people are dreaming the same dream? Now what else do you want भाई? ये चीज अपने आप में एक रेड फ्लैग है कि भाई you cannot be so badly wired कि भाई तुम्हारे साथ साथ 16 लाख और बच्चे एक ही सपने देख रहे हैं। तो तुम बस इस चीज को समझो। This dream that you are seeing is not your dreams. This dream was wired to your head when you were fucking born or at any point in your lifetime
by your parents, by your teachers, by your relatives, by the external environment. This does not signify you. This is just what the environment wants you to be. अब तुम सोचो, you have your goddamn life to yourself, पर उसको डिक्टेट या फिर गवर्न कर रहा है तुम्हारा एनवायरमेंट. Doesn't it sound too stupid, man? Maybe you are good at painting, maybe you are good at singing, maybe you are good at dancing, maybe you are good at comedy. There are a million other things that you might be good at, but external environment तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें मेडिसिन करना है, and that's why you are putting all your efforts to try to get into a medical school. Don't you think you are wasting a lot of effort, a lot of energy, a lot of potential that you were bestowed with, और जिसे तुम अगर यूज कर लेते अपने फील्ड में प्रॉस्पर करने के लिए, तुम मचा के रख देते, और वो सारा एफर्ट एक ऐसी चीज में डाल रहे हो जिसका शायद से तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं है. तो भाई सिंपल सी बात है, देखो, अगर ये फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ एंड तुम्हारा अंदर से आवाज नहीं आ रही कि भाई अब तो इसे लेना ही पड़ेगा, अब तो ये करना ही पड़ेगा, अगर वो जुनून अभी तक तुम्हारे अंदर से मेडिकल के लिए नहीं आया है, तो भाई एक चीज जान लो, ये तुम्हारा नहीं है. इट्स नॉट योर थिंग. I might be wrong, but you might be extremely talented in something else, जिसको तुम परस्यू करने में डर रहे हो, क्योंकि ये सोसाइटी बोल रहा है कि that has got lesser opportunities, maybe lesser money, lesser job, and that's why you are afraid to take the step जो तुम्हें खुश करता है, जो तुम्हारा पर्पस डिसाइडिंग है, वो सिर्फ तुम पैसे या फिर जॉब या फिर कुछ XYZ और फैक्टर्स के लिए छोड़ रहे हो पूरा. Is it the justice that you are doing to yourself, to your dreams, to your hobbies, to your passion, to your purpose, to your life? मतलब एक चीज को समझ लो, जब तुम अपने डेथ बेड में होगे ना, जब तुम साले मर रहे होगे, जब तुम अपने आखिरी क्षणों को गिन रहे होगे, you won't be proud of the doors you did not open, you won't be proud of the opportunities you did not take, you won't be proud of the life you lived, क्योंकि वो तुम्हारा लाइफ ही नहीं है बेंचो. You lived your entire life on someone else's terms for say 90 times over and you called it life. तो फिर रिग्रेट में मरना है या फिर मचा के मरना है? The final call is yours.